آپ لوگ جو پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں نا, اب قرآن میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تجوید ہے. قرآن میں سب سے اہم چیز تجوید. تجوید کے بغیر قرآن کا پڑھنا بالکل بیکار ہے, سمجھ آتا ہے نا. اور تجوید کے لیے ہمارا مدرسہ بہت اہمیت دیتا, ہمارا مدرسہ تجوید کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دیتا. تجوید کے لیے کیا ہم بھی کرتے ہیں, کتنا ٹائم ہم اسپینڈ کرتے ہیں آپ کے لیے, انفرادی ہو اجتماعی, سمجھ آتا ہے نا. اب نورانی قاعدے کے اندر کچھ قواعد ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں, سمجھ آتا ہے نا. سب سے پہلی چیز کیا ہے, قرآن پورا دو چیزوں میں مشتمل ہے, ایک حرکت, دوسرا عرف مدہ. سمجھ آتا ہے نا. حرکت کو عرف مدہ کی طرح پڑھے تو بھی میننگ بدل جاتا, عرف مدہ کو حرکت کی طرح پڑھے تو بھی میننگ بدل جاتا, سمجھ آتا ہے نا. ان دو چیزوں میں زیادہ خیال کر لینا, حفظ والے ہو ناظرہ والے ہو. دوسرا, یہ تو فرض ہے, حرکت کا عرف مدہ کا پڑھنا برابر سرابر یہ فرض ہے, کیونکہ اس میں بگاڑ نماز کو فاسد کر دیتی ہے. اس میں بگاڑ کیا ہے, نماز کو فاسد کر دیتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی. ہمیں امامت کرے, زبر پہ جگہ کیا کر کی پڑھتا رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہے, غلطی ہوگی, سمجھ میں آتا ہے. نماز بھی ٹوٹ جانے کا امکان ہے, سمجھ میں آتا ہے. اب یہ حرکت اور عرف مدہ سے ہٹ کو ایک اور چیز ہے, وہ کیا ہے, قرآن کی خوبصورتی. قرآن کی خوبصورتی, دنیا کے اندر جتنے بڑے قاری گزرے ہیں یہ سب چیزیں کیا, یہ سب کیا ہے, قرآن کی خوبصورتی کے اوپر زیادہ توجہ دی. اور قرآن کی خوبصورتی دو چیزوں کے اندر ہے, ایک ہے گنہ, دوسرا ہے مدہ. قرآن کے اندر دو فرض, دو ضروری چیز کیا ہے, حرکت, عرف مدہ. اور قرآن کی خوبصورتی کے لیے دو چیزیں کیا ہے, وہ کیا ہے, ایک ہے گنہ, دوسرا مدہ. سمجھ میں آتا ہے نا. اب گننے کے قواعد ہمیں معلوم کر لینا اور مدہ کے قواعد ہمیں معلوم کر لینا. اس کے لیے آج سب لوگوں کو بٹھایا گیا, سمجھ میں آتا ہے نا. ہر 2 روز ایک مرتبہ سوا چھٹی والا تو مدرسہ چھٹی ہے, اس کو چھٹی, سواری پرسوں انشاءاللہ پھر 11 بجے, ٹھیک 11 بجے آ کر ہمیں بیٹھ جائیں گے. سمجھ میں آتا ہے نا. بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے کو قاعدے سمجھ میں آتے, قاعدے سمجھ میں آگے سمجھ لو. قرآن پڑھنے میں ہمارے کو آسانی رہتی اور قرآن پڑھنے میں بہت مزہ آتا. اور بہت سارے حفظ کے طلبہ ہیں جلدی پڑھ دیتے ہیں, قرآن میں مدہ گنہ نہیں سکا, یہ بالکل غلط ہے. حفظ کے طلبہ ہو, ناظرہ کے طلبہ ہو, نورانی قاعدے کے طلبہ ہو, یا اما پارا ہی پڑھنا کیوں نہ ہو, چھوٹا سورہ ہی کیوں نہ ہو, اس کی خوبصورتی کا خاص خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. سمجھ میں آتا ہے نا. اور گنہ میں سب سے پہلی چیز نورانی قاعدے کے اندر تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ. تنوین اور نون ساکن کی کتنے قواعد ہیں, کتنے ہیں, 4 قاعدے. سیدھا بیٹھو, 4 قاعدے. 4 میں سے سب سے پہلا کیا ہے, اظہار. اظہار. دوسرا اخفا. تیسرا اقلاب. چوتھا ادغام. چار بھی الف سے شروع ہے, 1 2 3 4. 4 بھی کیا ہے, الف سے شروع ہوئی. اور یہ 4 چیزیں اس کو بھی کیا ہے, تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے. سمجھ میں آتا ہے نا. تنوین کیا ہے, نون ساکن کیا ہے, یہ دونوں کا شکل الگ الگ ہے, یہ دونوں کا شکل الگ الگ ہے, لیکن دونوں کا پروننسیشن ایک ہی ہے. حروف کی ادائیگی, دونوں کی ادائیگی ایک ہی آواز ہے. سمجھ میں آتا ہے نا. تختی نمبر 8 میں کیا ہے, تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ. جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز ایکسا ہوتی ہے. سمجھ میں آتا ہے نا. اب یہ 4 چیزیں کیا ہے, یہ 4 چیزیں کیا ہے, ہیڈنگ ہے. سمجھ میں آتا ہے نا. یہ 4 چیزیں کب اپلائی ہوتے ہیں, جب تنوین کے بعد اس میں سے کوئی سا تو ایک حرف آیا تو جب اپلائی ہوتے. سمجھ میں آتا ہے نا. سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنا کیا ہے, تنوین ہے یا نون ساکن ہے دیکھنا. تنوین ہے یا نون ساکن ہے دیکھنا. سمجھ میں آتا ہے نا. یہ دونوں کو دیکھنے کے بعد کیا حرف ہے دیکھنا.
समझ में आता है ना? ये दोनों को देखने के बाद क्या हरफ है देखना। अब इज़हार के कितने हरफ है? कितने हरफ है? 6 हरफ है। क्या क्या हरफ है? हमजा, हा, आइन, हा, गइन, खा। समझ में आता है ना? समझ में आया? ये 6 हरफ क्या है? इज़हार के हैं। इज़हार के हरफ है। फर्स्ट हमें क्या देखना? तनवीन देखना, नहीं तो नून साकिन देखना। ये दो में से कौन सा तो एक आया तो भी परवाह नहीं। दो के बाद इसमें से कौन सा हरफ आएगा देखना, सबसे पहली चीज। अब इसमें से कौन सा भी हरफ आया नहीं, तो इख्फा के 15 हरफ समझ में आता है ना? 15 हरफ में से कौन सा एक हरफ आएगा देखना। क्या क्या हरफ हैं? ता, जीम, जीम के बाद दाल। हाँ कौन बोला जी? दाल के बाद दाल, इसके बाद जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, वा के बाद आइन, आइन है, आइन में आ गया ना? ता, फा, काफ, काफ, होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हरफ। समझ में आता है ना? 15 हरफ ये हो गया, 15 हरफ है। उसके बाद इकलाब के कितने हरफ हैं? क्या हरफ है? बा मीम है, बा मीम है, मीम है, बा मीम है। तो भी बा कहते, तू भी बा कहते, करते बोलो बाबा, बाबा नहीं बा। समझ आता है ना? बा हुर्फ है, बा। समझ में आता है? इकलाब का एक ही हरफ है। उसके बाद इदगाम का या, रा, मीम, नून, ये 6 हरफ इदगाम के। हमें सबसे मेन चीज इस पे पकड़ लेने का क्या कर दो, इसके हरफ इसमें रहते नहीं, इसके हरफ इसमें रहते नहीं, इसके हरफ इसमें भी नहीं रहते, सब अलग अलग है। समझ में आता है आपको? सिर्फ बुझा लेते हैं, आता है समझ में आपको? किसका हरफ अलग अलग है, किसका डिपार्टमेंट अलग अलग है। समझ में आता है ना? अब मेन हमें देखना तो तनवीन और नून साकिन के बाद इसमें से कौन सा हरफ आया देख लेना। अब इन आया समझ लो, इज़हार आया समझ लो। इज़हार आया तो हमको इसकी अदायगी अलग रहता, इख्फा है तो उसकी अदायगी अलग रहता, इक़लाब है तो उसकी अदायगी अलग रहता, इरबल है तो इसकी अदायगी अलग रहता। समझ में आता है ना? हाँ, सबसे पहली चीज आज हमें इज़हार के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया ना? हाँ, इज़हार का मतलब क्या हो? इज़हार का मतलब जाहिर करना। किसको जाहिर करते? तनवीन और नून साकिन को नहीं। ये हरफ से पहले तनवीन आया, नून साकिन आया देखना, इसके अदा होने वाले हरफ को जाहिर करना। तनवीन कैसा अदा होता है? हमजा दो जबर, में क्या हरफ जाहिर होती है? नून की आवाज को जाहिर होती है। क्या जाहिर होती है? नून की आवाज जाहिर होती है। समझ में आता है ना? नून की आवाज को जाहिर करने को इज़हार बोलते हैं। अब नूरा दिखाई देने हुर्फ़े हल्क़ी 6 बोले। क्या बोले? हुर्फ़े हल्क़ी 6 बोले। हुर्फ़े हल्क़ी के इबारत के नाम इसको हलक से निकालने वाले हरफों को हुर्फ़े हल्क़ी बोलते हैं। समझ में आता है? हलक बोले तो क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक को हलक बोलते हैं। ये जो पाइप है, ये सीने और मुंडी दो के बीच में जो गैप है ना, ये पूरा पाइप को क्या बोलते हैं? हलक बोलते हैं। क्या समझ में आता है आपको? मुंडी के नीचे जो है ना, इसको हलक बोलते हैं। फर्स्ट हलक में से, ऊपर के हलक में से निकलता हमजा हा, नहीं लास्ट के हलक में से हमजा हा निकलता, आइन हा बीच के हलक में से निकलता, दरमियान के हलक में से, गैन खा ऊपर के हलक में से निकलता। समझ में आता है ना? हमजा हा का तशक्कुर यहाँ से आता आवाज है,
सीने में से आता है बोलते तो लास्ट हल्लक में से लास्ट हल्लक का लास्ट हिस्सा आइन हा बोलते शब्द दरमियान में से आता साउंड है जहां से हर्फ आता है उंगली रखे तो वाइब्रेशन होता गिर जाता आइन हा उसके बाद ऊपर के हल्लक में से गैन खा क्या आता गैन खा समझ में आता है ना ये इजहार की असलियत अब ये 6 हरफों को क्या बोलते हैं उर्फे हल्की नाम कहीं को रखे बोलो आवाज से प्रश्न को जब तुम्हें बोले ना 6 महीने को 2 महीने को 3 महीने को मुमताइन आपको पूछते तुम्हारा हिफ्ज वालों को भी नहीं छोड़ते नाज़िर वालों को भी नहीं छोड़ते ये बार इनामा देने वालों को बुलाना नहीं अभी सब तब बुलाते हैं समझ में आता है ना तो उन लगा खुद को पूछते ये क्या वो क्या तुम्हें जितना खुलासा करके उनको समझा देगी उतने नंबर ज्यादा पढ़ते जितना नंबर ज्यादा पढ़ते उतना फर्स्ट आते तुम लोग समझ में आता है ना तो ये हल्क से निकलने वाले हरफा पढ़ते इसको उर्फे हल्की बोलते हैं असल में कायदे के असल नाम क्या है इजहार इजहार का मतलब क्या है जाहिर करना किसको जाहिर करना इसके तन्वीन या नून साकिन की आवाज को जाहिर करना तन्वीन या नून साकिन की आवाज को जाहिर करना समझ आता है ना आवाज बोले तो क्या प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं अदायगी हुर्फ की अदायगी तन्वीन और नून साकिन की आवाज एक सा होती है तन्वीन की आवाज को नून साकिन की आवाज को आवाज हर जगह आवाज ही बोलते हैं दोनों ने खाए हम लोग आवाज छोड़ दो तो क्या क्या बोलते हैं इस चीज को जाहिर नहीं करते ये लिखत में आती तन्वीन और नून साकिन को लिखत में आता पढ़न में नहीं आता पढ़न में उसकी आवाज आती समझ में आता है आपको पढ़न में उसकी आवाज को जाहिर करना को कौन इजहार को बोलते समझ में आता है ना हाँ अब नेक्स्ट है अब मिसाल लिखो मिसाल लिखे स्टेप को टिकट कर को सब भी समझा को जाना मुझे समझा दे नहीं तो परसों समझा दे बिल्कुल आवाज से बोलो कौन क्यों जी हाँ आज वाले हाथ उठाओ बस आज कौन तैयार है समझाने के लिए हाथ बराबर उठाओ उतारना पढ़े नहीं है बेटा समझाते के लिए टाइम आता समझ में आया ना हाँ लिखना कौन बता दे होजाना बता कैसा बता दे वहाँ देखो बोलो बच्चों को समझो मेरे को तो मुझे मालूम मुझे मुझे समझाने की जरूरत बच्चों को समझो नाम के ऊपर 2 ज़बर है क्या है दो ज़बर की तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्क़ी में के 6 हरफों में से हमज़ा आया है क्या आया है हाँ तो इसलिए दो ज़बर की तनवीन को और 2 ज़बर की तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना चाहिए 2 ज़बर की तनवीन को और 2 ज़बर की तनवीन की आवाज को 2 ज़बर की तनवीन की आवाज़ किसको तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ना चाहिए बिला गुन्ना के जल्द पढ़ना करें बिला गुन्ना का तो क्या हो गुन्ना किए बगैर बिला गुन्ना का तो गुन्ना किए बगैर गुन्ना का तो क्या हो नाक में आवाज को थोड़ी देर तक लेना इसे गुन्ना बोलते वो आगे आता कायदे समझ में आता है ना हाँ चलो जज़ाकल्लाह अच्छा हो गया समझ में आता है ना आज हमें पढ़े उसमें से समझ में आ सकता है तनवीन के बाद हुर्फ़े हल्क़ी में से कोई सा भी हरफ आया तो तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ना चाहिए समझ में आता है ना बिला गुन्ना के जल्द पढ़ना बिला गुन्ना के जल्द पढ़ना बोले तो बिला गुन्ना का तो क्या हाँ बिला गुन्ना बोले तो बगैर गुन्ना गुन्ना किए बगैर इशारे करना बोलते हैं यहाँ देखो समझ में आता है करेंगे ऐसा
इज़हार का कायदा आज हो गया, कल इंशाल्लाह इख्फा का कायदा समझाएंगे, ठीक है ना? चलो जाओ स्टॉप इट, बोलो आवाज से। को जब तुम्हें बोले ना 6 महीने को 2 महीने को 3 महीने को मुमताहिन आपको पूछते तुम्हारा, हिफ्ज वालों को भी नहीं छोड़ते, नाज़िरा वालों को भी नहीं छोड़ते, ये बार इनामा देने वालों को बुलाना नहीं, अभी सब तब बुलाते हैं, समझ में आता है ना? तो उन लगा खुद को पूछते ये क्या वो क्या वो क्या वे क्या, तुम्हें जितना खुलासा करके उनको समझा देगी उतने नंबर ज्यादा पढ़ते, जितना नंबर ज्यादा पढ़ते उतना फर्स्ट आते तुम लोग, समझ में आता है ना? तो ये हल्क से निकालने वाले हरफा बोलते हैं, इसको उर्फ़े हल्की बोलते हैं। असल में कायदे के असल नाम क्या है? इज़हार। इज़हार का मतलब क्या है? जाहिर करना। किसको जाहिर करना? तन्वीन या नून साकिन की बात करें तो इसके तलबा तन्वीन या नून साकिन की आवाज को जाहिर करना, तन्वीन या नून साकिन की आवाज को जाहिर करना, समझ आता है ना? आवाज बोले तो क्या प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अदायगी, हुर्फ की अदायगी। तन्वीन और नून साकिन की आवाज एक सा होती है, तन्वीन की आवाज को, नून साकिन की आवाज को, आवाज हर जगह आवाज ही बोलते हैं, दोनों ने खाए थे, हम लोग आवाज छोड़ डाल तो क्या होगा कि बोलते हैं, इस चीज को जाहिर नहीं करते, ये लिखत में आती, तन्वीन और नून साकिन को लिखत में आता, पढ़ने में नहीं आता, पढ़ने में उसकी आवाज आती, समझ में आता है आपको? पढ़ने में उसकी आवाज को जाहिर करना को इज़हार को बोलते, समझ में आता है ना? हाँ, अब नेक्स्ट है अब मिसाल लिखो, मिसाल लिखे सबको एक एक करको सब भी समझा को जाना, मुझे समझा दे नहीं तो परसों समझा दे, बिल्कुल आवाज से बोलो, कौन क्यों जी? हाँ आज वाले हाथ उठाओ बस, आज कौन तैयार है समझाने के लिए? हाथ बराबर उठाओ, उतार रहा हूँ, पढ़े नहीं बेटा, समझाते के लिए टाइम आता, समझ आया ना? हाँ लिखना लिखना कौन बता दे? होजाना किसका हरफ अलग अलग है, किसका डिपार्टमेंट अलग अलग है, समझ में आता ना? अब मेन हमें देखना है तन्वीन और नून साकिन के बाद इसमें से कौन सा हरफ आया देखना। अब इन आया समझ लो, इज़हार आया समझ लो, इज़हार आया तो हमको इसकी अदायगी अलग रहता, इख्फा है तो उसकी अदायगी अलग रहता, इक़लाब है तो उसकी अदायगी अलग रहता, इरबल उड़ा तो इसकी अदायगी अलग रहता, समझ में आता ना? सबसे पहली चीज आज हमें इज़हार के बारे में पढ़ी, समझ में आया ना? इज़हार का मतलब क्या हो? इज़हार का मतलब जाहिर करना। किसको जाहिर करते? तन्वीन और नून साकिन को नहीं, ये हरफ से पहले तन्वीन आया नून साकिन में आया देखना, इसके अदा होने वाले हरफ को जाहिर करना। तन्वीन कैसा अदा होता है? हमजा दो जबर, में क्या हरफ जाहिर होती है? नून की आवाज को जाहिर होती है, क्या जाहिर होती है? नून की आवाज जाहिर होती है, समझ में आता है ना? नून की आवाज को जाहिर करने को इज़हार बोलते हैं। अब नूरा दिखाई देने हुर्फ़े हल्की 6 बोले, क्या बोले? हुर्फ़े हल्की 6 बोले, हुर्फ़े हल्की के को रखे नाम इसको, हलक से निकालने वाले हरफों को हुर्फ़े हल्की बोलते हैं, समझ में आता है? हलक बोले तो क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक को हलक बोलते हैं। ये जो पाइप है, ये सीने और मुंडी दो के बीच में जो गैप है ना, ये पूरा पाइप को क्या बोलते हैं? हलक बोलते हैं। क्या समझ में आता है आपको? मुंडी के नीचे जो है ना, इसको हलक बोलते हैं। फर्स्ट हलक में से, ऊपर के हलक में से निकलता हमजा हा, नहीं लास्ट के हलक में से हमजा हा निकलता, आइन हा बीच के हलक में से निकलता, दरमियान के हलक में से, गैब खा ऊपर के हलक में से निकलता, समझ में आता है ना? हमजा हा का दस्तक को यहाँ से आता आवाज है, सीने में से आता आवाज, बोल तो लास्ट हलक में से, लास्ट हलक का लास्ट हिस्सा,
आइन हा बोलते समय दरमियान में से आता साउंड है, जहां से हर्फ आता है उंगली रखे तो वाइब्रेशन होता, गिर जाता आइन हा। उसके बाद ऊपर के हलक में से गैन खा, क्या आता गैन खा, समझ आता है ना। ये इजहार की असलियत। अब ये 6 हरफों को क्या बोलते हैं, हुर्फ हल्की नाम कहीं को रखे, बोलो आवाज से। को जब तुम्हें बोले ना 6 महीने को 2 महीने को 3 महीने को मुमताहिन आपको पूछते तुम्हारा, हिफ्ज वालों को भी नहीं छोड़ते, नाज़िरा वालों को भी नहीं छोड़ते, ये बार इनामा देने वालों को बुलाना नहीं, अभी सब तब बुलाते हैं, समझ में आता है ना। तो उन लगा खुद को पूछते ये क्या वो क्या वो क्या वो क्या, तुम्हें जितना खुलासा करके उनको समझा देगी उतना हमारा ज्यादा पड़ता है। देखना क्या क्या हर्फ हैं, ता ता जीम, जीम के बाद दाल, हाँ कौन बोला जी, दाल के बाद दाल, इसके बाद जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, वा के बाद आइन, आइन है, आइन में आ गया ना, ता फा काफ काफ, होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हरफ, समझ आता है ना, 15 हरफ, ये हो गया 15 हरफ है। उसके बाद इकलाब, इकलाब के कितने हरफ हैं, क्या हरफ है, बा मीम है, बा मीम है, मीम है, बा बा मीम है, तो भी बा कहते, तू भी बा कहते, करते बोलो बा बाबा नहीं बा, समझ आता है ना, बा हुर्फ है बा, समझ आता है। इकलाब का एक ही जगह हरफ है। उसके बाद इदगाम का या रा मीम वाव नून, ये 6 हरफ इदगाम के। हमें सबसे मेन चीज इस पे पकड़ लेने का क्या कर दो, इसके हरफ इसमें रहते नहीं, इसके हरफ इसमें रहते नहीं, इसके हरफ इसमें भी नहीं रहते, सब अलग 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 है। समझ में आता है आपको, सिर्फ बुझा लेते हैं, आता है समझ में आपको, किसका हरफ अलग अलग है, किसका डिपार्टमेंट अलग अलग है, समझ आता है ना। अब मेन हमें देखना है तनवीन और नून साकिन के बाद इसमें से कौन सा हरफ आया देख लेना। अब इन आया समझ लो, इज़हार आया समझ लो, इज़हार आया तो हमको इसकी अदायगी अलग रहता, इख्फा है तो उसकी अदायगी अलग रहता, इक़लाब है तो उसकी अदायगी अलग रहता, इरबल ना तो इसकी अदायगी अलग रहता, समझ में आता है ना। हाँ, सबसे पहली चीज आज हमें इज़हार के बारे में पढ़ी, समझ में आया ना। हाँ, इज़हार का मतलब क्या हो, इज़हार का मतलब जाहिर करना, किसको जाहिर करते, तनवीन और नून साकिन को नहीं, ये हरफ से पहले तनवीन आया नून साकिन आया, देखना इसके अदा होने वाले हरफ को जाहिर करना। तनवीन कैसा अदा होता है, हमजा दो जबर, ये बिल्कुल गलत है। इसके तलबा हो, नाज़िरा के तलबा हो, नूरानी कायदे के तलबा हो, या अम्मा पारा ही पढ़ना क्यों ना हो, छोटा सूरा ही क्यों ना हो, उसकी खूबसूरती का खास ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है, समझ में आता है ना। और गुन्ना में सबसे पहली चीज नूरानी कायदे के अंदर तनवीन और नून साकिन का कायदा, तनवीन और नून साकिन के कितने कवायदे हैं, कितने हैं, 4 कायदे, सीधा बैठो, 4 कायदे। 4 में से सबसे पहला क्या है, इज़हार, इज़हार, दूसरा इख्फा, तीसरा इक़लाब, चौथा इदगाम, चार भी अलिफ से शुरू हुए, 1 2 3 4, 4 भी क्या है, अलिफ से शुरू हुई। और ये 4 चीजें उसमें क्या है, तनवीन और नून साकिन का फायदा है,
समझ में आता है ना? तन्वीन क्या है, नून साकिन क्या है? ये दोनों का शक्ल अलग अलग है, ये दोनों का शक्ल अलग अलग है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। हुरूफ की अदायगी, दोनों की अदायगी एक ही आवाज है। समझ में आता है ना? तख्ती नंबर 8 में क्या है? तन्वीन और नून साकिन का कायदा, जिस नून पर जज़म सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। तन्वीन और नून साकिन की आवाज एक सा होती है। समझ में आता है ना? अब ये चार चीजें क्या है? ये चार चीजें क्या है? हेडिंग है। समझ में आता है ना? ये चार चीजें कब अप्लाई होते हैं? जब तन्वीन के बाद इसमें से कोई सा तो एक हरफ आया तो जब अप्लाई होते। समझ में आता है ना? सबसे पहली चीज हमें देखना क्या है? तन्वीन है या नून साकिन है देखना। तन्वीन है या नून साकिन है देखना। समझ में आता है ना? ये दोनों को देखने के बाद क्या हरफ है देखना। समझ में आता है ना? ये दोनों को देखने के बाद क्या हरफ है देखना। अब इज़हार के कितने हरफ? कितने हरफ? 6 हरफ है। क्या क्या हरफ है? हमजा, हा, आइन, हा, वाइन, खा। समझ में आता है ना? समझा दे तो परसों समझा दे। बिल्कुल, आवाज से बोलो। कौन की बोल जी? हाँ, आज वाले हाथ उठाओ बस। आज कौन तैयार है समझाने के लिए? हाथ बराबर उठाओ। पढ़े नहीं ना बेटा, समझाते के लिए नहीं मानता। समझ में आया ना? हाँ, लिखना लिखना। कौन बता दे? हो जाना। बता कैसे बता दे? वहाँ देखो, बोलो बच्चा को समझो। मेरे को तो मुझे मालूम, मुझे मुझे समझाने की जरूरत है। बच्चा को समझो। नाम के ऊपर 2 ज़बर है। क्या है? 2 ज़बर की तन्वीन के बाद रुफ़े हल्क़ी में के 6 हरफों में से हमजा आया है। क्या आया है? हाँ, तो इसलिए दो ज़बर की तन्वीन को और 2 ज़बर की तन्वीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए। 2 ज़बर की तन्वीन को और 2 ज़बर की तन्वीन की आवाज को, 2 ज़बर की तन्वीन की आवाज़, तन्वीन की आवाज किसको? तन्वीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। बिला गुन्ना के जल्द पढ़ना है। बिला गुन्ना का तो क्या हो? गुन्ना किए बगैर। बिला गुन्ना का तो गुन्ना किए बगैर। गुन्ना का तो क्या हो? नाक में आवाज को थोड़ी देर तक लेना, इसे गुन्ना बोलते हैं। वो आगे आता कायदा। समझ में आता है ना? हाँ, चलो जज़ाकल्लाह, अच्छा हो गया। समझ में आता है ना? आज हमें पढ़े उसमें से समझ में आ सका है तन्वीन के बाद हुर्फ़े हल्क़ी में से कोई सा भी हरफ आया तो तन्वीन की आवाज को ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए। समझ में आता है ना? बिला गुन्ना के जल्द पढ़ना। बिला गुन्ना के जल्द पढ़ना बोले तो बिला गुन्ना का तो क्या हो? हाँ, बिला गुन्ना बोले तो बगैर गुन्ना, गुन्ना किए बगैर। इशारे करना बोलते हो। यहाँ देखो, समझ में आता है? करेंगे ऐसा? इज़हार का कायदा आज हो गया, कल इंशाल्लाह इख्फा का कायदा समझाएंगे। ठीक है ना? चलो जाओ, स्टॉप।